Swati, yes. Hello everyone. I, Swati Jain, Coordinator, Women's Forum SPSR, would like to welcome you all to attend a national webinar on the topic Is Diabetes Curable in Homeopathy? Let me extend a hand of gratefulness to erudite Professor Dr. Shashi Alok, President SPSR, to have given me an opportunity to pertain to such an informative webinar on an exclusive topic. Welcome, Dr. Shashi. I would also like to welcome our eminent speaker, Dr. Asif Ali, founder of Adam Homeopathy Virtual Clinic, on behalf of SPSR. Dr. Asif has been an ex-chief homeopathy consultant at Dr. Batras. Now, I request Dr. Shashi to kindly take the lead. Thank you, Swati Jan. A very good afternoon to all. On the behalf of SPSR, I welcome Honorable Speaker Dr. Asif Ali, Founder Adam Virtual Clinic, Honorable Secretary SPSR Mrs. Monica Sabarbal, Joint Secretary Mr. Saurabh Kose, SPSR National Women Forum President Dr. Padmani Shukla, Dr. Rajni President SPSR West Bengal Branch, Sri Sanjay Nagdev Vice President SPSR Maharashtra Branch, Sri Ankur Agarwal, MP State Member, Mrs. Swati Jain, Coordinator, Women's Forum, and all the virtual participants who present here in this national webinar on is diabetes is curable in homeopathy. So today we are going to talk about diabetes and its homeopathic remedies. As we know that diabetes is a chronic metabolic disease characterized by abnormal affect the liver, kidneys, and nerves. So, about 422 million people worldwide have diabetes, and the majority living in the low and middle income countries, and 1.6 million deaths are directly attributed to diabetes each year. So, both the number of cases and the prevalence of diabetes have been steadily increasing over the past few decades. Homeopathic is an also alternative medical system, and homeopathy is based on the ideas that a condition can be treated with a diluted amount of natural substance that been shown to cause symptoms of the disease in healthy people. Homeopathic remedies are made from the minerals, plants, or animals, so they are considered all natural. In this regard, today we welcome Dr. Asif Ali, and thank you for being accepted as Mrs. Over to Swati Jan. Thank you, Dr. Shashi Alok. So, viewers, today we again have with us renowned Dr. Asif. This is the second time that we are having an opportunity to have a webinar with him. Previously, Dr. Asif had presented a webinar on hair fall management with homeopathy, which was a wonderful session and it was viewed by around 30,000 virtual audience. We got many positive feedback for the same, and we even got many suggestions to again conduct a webinar with him. So SPSR is fortunate to have him again today. Let me again brief up Dr. Asif's profile to our new virtual viewers. Dr. Asif has done his bachelor's in homeopathy medical surgery, after which he pursued a specialized course in fundamental critical care support from Chirayu Medical College. He has worked for 3 years in emergency services. He has conducted various stress management programs and various weight management programs in Adam Homeopathy Virtual Clinic.
He has also worked in Dr. Batra's Private Limited for 5 consecutive years as Chief Homeopathy Consultant. Viewers, as we all know that diabetes is a disease which is not only acquired due to genetic predisposition, but it's also a lifestyle disease. It's not just consumption of carbohydrates and lipid-rich diet that results in diabetes, but the stressful and sedentary lifestyle plays the key role in it. Not just the adults, but youngsters and even kids are getting affected. People who get this grave disease must succumb to various lifestyle changes, and the worst of all, they have to keep popping up allopathic medicines for lifelong. Some even cannot live a day without injecting insulin. It's not a simple popping up thing. It's not just simple ailment that can be cured with some antibiotics and it's over. It's rather a disease which gives rise to many other ailments. If sugar level is not controlled in a body, then the patient may get hyperlipidemia, thyroid disorders, hypertension, glaucoma, cardiovascular diseases, and whatnot. You may think, alas, what a sadistic life it is. But thanks to homeopathy to have given a beam of sunshine, a gift of hope, by promising its cure without side effects. Yes, you heard me correct. Homeopathy has a cure. And this is why we have conducted a webinar today to get as many people benefited as we can. Viewers, we definitely believe when it comes from an expert himself, isn't it? Owing to previous positive outcomes of the webinar given by Dr. Asif, we are pleased to have more than 1,000 registrations this time. Not only from India, but from many other countries as well. We have registered viewers from USA, UK, Macau, Philippines, Bhutan, Bangladesh, Saudi, Ethiopia, Nigeria, Nepal, Pakistan, Germany, and so many other countries. So, on the behalf of SPSR, I heartily welcome you again, Dr. Asif. Over to you, Dr. Asif. Thank you for having me here on Global SPSR. Firstly, I would like to thank Dr. Shashi Alok, President of SPSR, Mrs. Swati Jain, Coordinator, Women's Forum, SPSR. Today, we are going to discuss about diabetes. Is diabetes curable in homeopathy or not? जिसे हम ब्लड शुगर या फिर मधुमेह या फिर उर्दू में अगर हम बात करें तो ज़ियाटिक डिजीज भी बोलते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये डिजीज इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे है कि हमें पता भी नहीं चलता और ये हमारी बॉडी में आ जाती है। इस डिजीज के बारे में कहा जाता है कि ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है। बहुत सारे फैक्टर्स जब इकट्ठे होते हैं तो हम डायबिटिक हो जाते हैं, या हम ये भी कहें कि हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक कोशिश करते हैं अपने आप को डायबिटिक करने के लिए, बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं। डायबिटीज बेसिकली एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह होता है, जिसे हम बहुत कुछ बताना चाहते हैं कि कैसे लाइफ चलना चाहिए, कैसे हमें अपना काम करना चाहिए, लेकिन वो बच्चा मानता नहीं है। हम बोलते हैं बेटा आपको यहाँ बैठना है, वो वहां बैठता नहीं है। बेटा आपको ये नहीं करना है, वो वही करता है। बेटा आपको यहाँ से जंप नहीं करना है, वो जंप करता है, और जंप करने के बाद क्या होता है, उसको फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देखता है, अगर फ्रैक्चर छोटा है तो वो बोलता है भाई आप प्लास्टर लगवा लीजिए, अगर फ्रैक्चर बड़ा है तो फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। ये एग्जांपल मैं इसलिए आपको दे रहा हूं कि डायबिटीज भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। वो आपको बताती है टाइम टू टाइम आपको ये नहीं करना है, आप ऐसे मत करिए, लेकिन हमारी डाइट, हमारी लाइफ स्टाइल उस दिशा में जाती है जो हमारे लिए हार्मफुल है। अगर हम बहुत लंबे टाइम तक कुछ ऐसा करते हैं जो हार्मफुल है, तो हमारी बॉडी हमको एक गिफ्ट देती है, और वो गिफ्ट हमें हरगिज पसंद नहीं आता। वो गिफ्ट होता है डायबिटीज। पेशेंट आता है और वो डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है कि बहुत प्यास लगती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यूरिनेशन बार बार को जाना होता है, मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा वेट कम हो रहा है, मुझे नमनेस हो रही है, मेरी बॉडी सुन्न हो जाती है। तो डॉक्टर उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है, और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद वो आपके हाथ में एक रिपोर्ट दे देता है जो कि आपको बताती है कि अब आप लाइफ लॉन्ग एक ऐसे डिसऑर्डर से
सफर कर रहे हैं, जो आपको कई बार बता देगा कि आप ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं, और आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। मैं अपनी एक स्लाइड के थ्रू आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि हाउ डायबिटीज वर्क इन बॉडी। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा एडम होम्योपैथी वर्चुअल क्लिनिक की तरफ से। डायबिटीज द स्वीट पैंग, ये नाम मैंने इसको इसलिए दिया है क्योंकि ये एक मीठा कष्टदायी डिजीज है। मैनेजमेंट, डाइट एंड होम्योपैथी ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब हमारे हाथ में रिपोर्ट आती है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि इनके हाथ में रिपोर्ट है और ये बड़े स्ट्रेस में, तो इनके दिमाग में क्या चल रहा है? इज इट क्यूरेबल और नॉट? ये ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती? ये रिवर्सिबल हो सकती है या नहीं हो सकती? ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट मुझे लेना पड़ेगा क्या? क्या इससे मेरी पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ भी अफेक्ट होती है? क्या ये मुझे हैंडीकैप भी कर सकता है? इन सारे सवालों की, इस सारे कंसर्न की बारे में हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। पहले हम ये जान लें कि नॉर्मल ब्लड शुगर क्या होता है, या ये जान लें कि बॉडी कैसे ठीक से ब्लड को या शुगर को एब्जॉर्ब करती है। देखिए, शुगर हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए। अगर हमारा शुगर लेवल नॉर्मल होता है तो हम एनर्जेटिक रहते हैं। अक्सर हमने देखा है कि अगर हमने खाना नहीं खाया है और हम कोई काम बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, तो हमारा शुगर लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है और नॉर्मल से नीचे चला जाता है, जिसको हम हाइपोग्लिसीमिया कहते हैं। और हमें चक्कर भी आ सकते हैं, हम बेहोश भी हो सकते हैं, और लंबे टाइम तक ऐसा रहे तो और भी कॉम्प्लिकेशन हमारे बॉडी में डेवलप हो सकते हैं। यही शुगर अगर नॉर्मल से ज्यादा होती है तो भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे बॉडी में आते हैं। तो ये शुगर काम कैसे करती है? हम इस स्लाइड में अब जैसे देख रहे हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं वो सारा खाना कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो होता है वो हमारे सेल के लिए फ्यूल का काम करता है। जब ग्लूकोज हमारे सेल के पास आता है तो वो सेल के अंदर इंटर नहीं कर सकता जबकि उसके पास पास ना हो। पास हम इंसुलिन को कहते हैं। मतलब हमारा ऑर्गन है जिसे हम पैनक्रियास कह रहे हैं, वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है। जब वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है तो ग्लूकोज जो कि सेल के सरफेस एरिया पे जमा है, वहां पे जाके वो उसके साथ बाइंडिंग करता है और उस ग्लूकोज को सेल के अंदर इंटर करता है, सेल को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में सेल की मदद करता है। तो ये एक नॉर्मल फेनोमेना है। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है तो आप सेफ हैं, आप ठीक हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो हम देखते हैं वो हमें किस तरह शो होते हैं। यहां हमने टाइप ऑफ डायबिटीज के बारे में बात की है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज बेसिकली, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। हम आज जो बात करने वाले हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। टाइप 1 डायबिटीज में जैसे कि हमने देखा है कि ये ज्यादातर बच्चों में होती है, और इसमें होता क्या है कि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है, वो भूल जाता है इंसुलिन कैसे बनाना है, जिसकी वजह से शुगर एब्जॉर्ब नहीं होता सेल में, और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं जब तक कि हम ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट ना करें। जैसा कि टाइप 2 डायबिटीज के बारे में कहा जाता है कि अगर हम इनिशियल स्टेज में डॉक्टर के पास जाते हैं और जो रिक्वायर्ड ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं या स्लाइवा इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये बॉर्डर लाइन शुगर है, तो हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं और कुछ हद तक हम उसे क्योर भी कर सकते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। अगर टाइप 2 डायबिटीज के बारे में देखा जाए और हम फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि ये मल्टी फैक्टोरल डिजीज है, बहुत सारे फैक्टर्स इस कंडीशन को अफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो हेरिडिटी और दूसरा लाइफ स्टाइल। अगर हम हेरिडिटी के बारे में बात करें तो ये स्लाइड आपको समझाने की कोशिश करेगी कि हेरिडिटी वाइज कैसे आप डायबिटिक हो सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को और
पेरेंट्स को, फादर और मदर दोनों को डायबिटीज है, तो 80 to 90% चांसेस होते हैं कि आपको डायबिटीज हो सकती है, हो जाएगी। लेकिन देखिए, उम्मीद हमेशा बाकी रखना चाहिए। तो 10% चांसेस ये भी रहते हैं कि भाई आप इससे बच सकते हैं। अगर हम फैमिली हिस्ट्री की बात करें और ये देखें कि फादर या मदर में से किसी एक को डायबिटीज है, तो भी 40% चांसेस होते हैं कि आपको डायबिटीज हो जाएगी। और कई बार देखा गया है कि जिसके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं होती है, वो ये सोच के अपनी लाइफ को कैसे भी करना शुरू कर देता है कि भाई हमारी फैमिली हिस्ट्री में तो डायबिटीज है नहीं, तो मुझे होगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ स्टाइल आपको 20% चांसेस पैदा करता है डायबिटीज होने के। मैं इस चार्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मेरे दो फ्रेंड्स हैं, मेरे कुलीग्स हैं। एक के पेरेंट्स को, बोथ पेरेंट्स को डायबिटीज थी काफी लंबे टाइम से, और उसको भी 35 की एज में डायबिटीज डायग्नोस हो गई। जब मैंने उससे पूछा कि भाई तुमको डायबिटीज हो गई, क्यों हो गई, तो उसने मुझे बोला कि मेरे मम्मी पापा दोनों को डायबिटीज थी तो मुझे तो होना थी। अब मैं उसको वजह बताता हूँ कि क्या वजह थी कि इसको डायबिटीज हुई। मेरी दूसरी फ्रेंड थी, वो भी डॉक्टर है, उसके मम्मी पापा को या उसके ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं है, लेकिन उसको भी डायबिटीज हो गई। क्या वजह थी? मेरा जो फ्रेंड जिसकी फैमिली हिस्ट्री थी डायबिटीज की, उसने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं किया। लाइक वो फूडी है तो उसने बहुत सारा खाना खाना पसंद करता है, तो उसने खाना खाया। उसने एक्सरसाइज नहीं की, उसकी स्लीप डिस्टर्ब रही, और कई टाइम तक वो स्ट्रेस में रहा, और कई हद तक वो अपना स्ट्रेस किसी से शेयर भी नहीं करता था। तो जब स्ट्रेस शेयर नहीं किया जाता है और स्ट्रेस में हम ज्यादा लंबे टाइम तक रहते हैं, तो डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, वो भी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। और मेरी जो दूसरी फ्रेंड जिसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, जो कि डॉक्टर है, उसने क्या किया, उसको पता था मेरी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है डायबिटीज की, तो मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। उसने जंक फूड्स खाए, उसका वेट पुट हुआ, कुछ पर्सनल इश्यू की वजह से उसको स्ट्रेस भी रहा, और उसने एक्सरसाइज भी नहीं की, जिसकी वजह से उसको भी डायबिटीज हो गई। तो इस स्लाइड के थ्रू मैं आप लोगों को ना डरा रहा हूं, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 10% चांसेस अगर आपके पास हैं डायबिटीज से बचने के, तो आपके लिए जरूरी है वो सारे चीजों को फॉलो करना जो आपको डायबिटीज से बचाती है। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि आप फोटोज देख रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन 5 फोटो हैं जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अपने साथ क्या किया है। आप लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं रही है, प्रेगनेंसी जब आपकी थी तब आपके साथ कुछ फैक्टर्स थे दिया, ओबेसिटी भी आपको, और सबसे बड़ा जो इशू है वो प्रोसेस्ड फूड है। वो ज्यादा बनाया जाता है ट्रांस फैट में, और जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जिसको हम बहुत फास्ट खाते हैं, फास्ट लेते हैं। तो इसी सारे फैक्टर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहला है हाउ स्ट्रेस इंड्यूसेस डायबिटीज। स्ट्रेस हमारे अंदर डायबिटीज कैसे ले आता है? तो हमारी जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए दो ग्रुप ऑफ हार्मोन होते हैं। एक ग्रुप जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, जो कि हेल्प करता है ब्लड शुगर को यूटिलाइज करने के लिए, और दूसरा ग्रुप जिसे हम काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन कहते हैं, जो कि अपोज करता है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन का और प्रोडक्शन एक्शन ऑफ इंसुलिन को। मतलब प्रोडक्शन को भी काउंटर करता है और एक्शन को भी काउंटर करता है, दोनों को काउंटर करता है। हमारी बॉडी में स्ट्रेस के टाइम जो हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल हमारी, इससे हमें निकालने के लिए या स्ट्रेस करने, एक जब बहुत लंबे टाइम तक आप स्ट्रेस रहता है, आपकी जॉब चली गई, कोई आपका नियर वन आपको छोड़ के चला गया,
किसी की डेथ हो गई, आप जिस फील्ड में थे आप उसमें आपका फेल्यूर है, आप फेल हो गए, और यही सारी चीजें आपके लाइफ में लंबे टाइम तक चली, मतलब आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया, आपका स्ट्रेस लंबे टाइम तक चलता रहा, तो ये स्ट्रेस जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो इंसुलिन के एक्शन को और इंसुलिन के प्रोडक्शन को काउंटर कर देता है, और उस कंडीशन में बॉडी में शुगर जो हम खाने से ले रहे हैं वो ज्यादा इकट्ठी होती है, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, वो उसकी वजह से हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से हम हमारा पैनक्रियाज अफेक्ट होता है, उसकी वजह से हमारा लीवर अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से लीवर फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर होने की वजह से अब ग्लूकोज अगर बॉडी में बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा, वो या तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो क्या बोलेगा लीवर कि भाई देखो ये तो बहुत ज्यादा शुगर हो गया है, तो मैं तो इसको नहीं टॉलरेट कर सकता, मैं इसको किडनी को दे देता हूँ। अब किडनी क्या बोलेगी, अब भाई देखो ऐसा है, इतना शुगर तो मैं नहीं बाहर निकाल सकती हूँ, मुझे पानी की जरूरत है। तो उस कंडीशन में हमारी थर्स्ट बढ़ जाती है, हमें पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होने लग जाती है, हम पानी ज्यादा पीने लग जाते हैं। पानी ज्यादा पीने की वजह से क्या होता है, पानी ज्यादा पीने की वजह से हमें फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है। ये एक सिम्टम है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं इस सिम्टम को लेके कि ये बार बार क्यों हो रहा है। अच्छा, मैं लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ स्ट्रेस आप में डायबिटीज नहीं पैदा कर सकता, स्ट्रेस को बहुत सारे दोस्तों की जरूरत होती है, ऐसे दोस्त जो मिल के बॉडी में डायबिटीज क्रिएट करते हैं। तो हमारा दूसरा जो फैक्टर है वो है हाउ डाइट इंड्यूसेस डायबिटीज, कैसे डाइट हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। अब देखें, पहला फैक्टर स्ट्रेस हो गया, अब स्ट्रेस है आपको और उसके साथ आपकी डाइट हैबिट भी प्रॉपर नहीं है, जैसे आप हाई इंडेक्स वाली डाइट लेते हैं। ऐसी डाइट हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट क्या होती है, जिसमें बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा शुगर होती है। जैसे जैसे कोल्ड ड्रिंक, आपने कोल्ड ड्रिंक पिया और वो कोल्ड ड्रिंक बहुत जल्दी बहुत ज्यादा शुगर बनाना तैयार कर देता है। जब बहुत ज्यादा शुगर बनता है तो पैनक्रियाज के पास एक संकेत जाता है, एक मैसेज जाता है कि आपको बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा, तब इतना शुगर एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो उसमें पैनक्रियाज एग्जॉस्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, वो इतना इंसुलिन बना नहीं पाता है। तो इसकी वजह से ये लीड करता है टाइप 2 डायबिटीज में। इसके अलावा हम लो फाइबर डाइट लेते हैं। लो फाइबर डाइट हम किसे बोलेंगे, आप जैसे जूसेस हैं, अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो उसमें फाइबर है, फाइबर एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, शुगर एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। लेकिन आप फाइबर डाइट की जगह आप जूसेस ले रहे हैं जिसमें शुगर ज्यादा है, तो वो भी ऑल ऑफ सडन आपकी बॉडी में ज्यादा शुगर को बनाना शुरू कर देगा और जिसका एब्जॉर्प्शन मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा हाइब्रिड फूड्स, हाइब्रिड फूड्स जो आजकल जेनेटिकल साइंस हो गया है, उसमें जो सीड्स बनाए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि जो फ्रूट आए वो साइज में बड़ा हो, बहुत खूबसूरत हो। हमने कई बार देखा है कि बनाना वो बहुत बड़े नजर आने लगते हैं हमें, उनका कलर भी बहुत अट्रैक्टिव होता है। और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो हाइब्रिड फ्रूट्स जिसे कहते हैं, उसके लेने से क्या होता है कि उसमें शुगर ज्यादा होता है और फाइबर्स कम होते हैं, जिसकी वजह से शुगर का लेवल शूट करता है। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कि जब शुगर ज्यादा होगी बहुत कम वक्त में, तो फिर क्या होगा, पैनक्रियाज को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, इतनी मेहनत करना पड़ेगी कि वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसके एक्सर्शन से डायबिटीज 2 लीड हो सकती है। इसके अलावा केमिकल इंसल्ट्स, अब ये केमिकल इंसल्ट्स क्या होता है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और पॉल्यूशन, जब हमारे फूड्स इनसे बनाए जाते हैं या
यूज होता है हमारे फूड्स को बनाने, केमिकल्स का यूज होता है, तो उसे हम केमिकल इंसल्ट कहते हैं। और वो केमिकल्स हमारे फूड में जाते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं, जिसकी वजह से शुगर बहुत तेज बनना शुरू होता है। और जैसे मैंने ऊपर वालों चीजों को समझाया है कि जब शुगर ज्यादा बनेगा तो उसको इंसुलिन की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और इंसुलिन उतना बन नहीं पाएगा, या बनेगा तो लीवर आपका पैनक्रियाज एग्जॉस्ट हो जाएगा, और उसके एक्सर्शन की वजह से डायबिटीज लीड होगी। इसके अलावा फास्ट फूड, अब इसके नाम से ही हमें समझ में आता है, फास्ट फूड ऐसा खाना हम बहुत तेज खाते हैं, जो लाइक आपने पिज्जा ले लिया, आपने बर्गर ले लिया, आपने उसको जल्दी जल्दी खाने की कोशिश की, प्रोसेस्ड फूड होता है। तो उस प्रोसेस्ड फूड की वजह से क्या होता है कि शुगर बहुत ज्यादा हो जाती है बॉडी में, और इंसुलिन उतना होता नहीं है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कोल्ड ड्रिंक के अलावा अल्कोहल, अल्कोहल शुगर को भी ज्यादा बनाता है, और हमारे लीवर को भी डैमेज करता है। लीवर के डैमेज होने की वजह से बहुत सारी चीजों में हमें प्रॉब्लम आती है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, बाइल बाइल ये एक डीप सब्जेक्ट है, उसमें हम नहीं जाते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमें समझ में नहीं आता है, वो है हाउ लैक ऑफ स्लीप एंड रेस्ट इंड्यूस डायबिटीज। अब कई बार ऐसा होता है, हम पेशेंट से पूछते हैं कि आप कितने घंटे सोते हैं, तो उनका कहना होता है, सर मैं जो हूँ 7 to 8 आवर्स सोता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर ये बताते हैं कि इफ यू आर टेकिंग स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स, इट्स इनफ, इट्स गुड, इट्स हेल्दी। हम लेस क्वालिटी ऑफ स्लीप की अगर बात करें, तो लेस क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या होती है कि आपके आवर्स तो ज्यादा होते हैं, आप ज्यादा सोते हैं, लेकिन वो क्वालिटी स्लीप नहीं होती है। लाइक आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और जब आप 8 घंटे के बाद सो के उठते हैं तो आपको लगता है मैं अभी सोया था, अभी उठ गया। और आप टाइम देखते हैं तो आपको लगता है आप 7 to 8 आवर्स सो चुके हैं, लेकिन आप इतना फ्रेश महसूस नहीं करते हैं। आप इतना फ्रेश महसूस नहीं करते हैं जो 7 to 8 आवर्स की स्लीप के बाद आपको महसूस करना चाहिए। तो ये लेस क्वालिटी स्लीप है, और लेस क्वालिटी स्लीप आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस लेके आती है, जो कि डायबिटीज लीड करते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्टरबेंस इन स्लीप पैटर्न। देखिए, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, हमने अपना स्टैंडर्ड सिंबल बना लिया है। हम सोचते हैं कि वी आर कूल इफ वी आर स्लीपिंग लेट नाइट। इट इज नॉट लाइक दैट। लाइक अगर आप सनसेट के टाइम जाग रहे हैं और सनराइज के टाइम सो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्लीप का पैटर्न प्रॉपर नहीं है। स्लीप का पैटर्न अगर प्रॉपर नहीं है, तो बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होना लाजमी है। लाइक आपको सोना चाहिए 10 o'clock, आप सो रहे हैं 3 o'clock, 5 o'clock। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अभी अभी इंडिया में पबजी बैन हो गया, और पबजी ने बहुत हेल्प करी है लोगों की डायबिटीज करवाने में। कैसे? लोग बाग रात रात भर पबजी पे होते थे, आ, लोग रात रात भर मूवीज देखते हैं, जो अभी भी देखते हैं, और उनका स्लीप पैटर्न जो होता है वो चेंज हो जाता है। पहले वो 10 बजे सो रहे थे, अब वो अपने सेशन को कंप्लीट करने के बाद 3 AM to 4 AM सोते हैं, और वो टाइम जब उन्हें उठना चाहिए वो सो रहे होते हैं। तो उसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, जो कि एक कॉज है डायबिटीज का। अभी देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके साथ स्लीप का इशू है तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, नहीं, आपके साथ और भी सारे फैक्टर्स हैं, और स्लीप का भी इशू है। तो ये क्या करता है, ये आपके हैप्पी हार्मोन्स को अफेक्ट करता है, जो कि डायबिटीज की तरफ चला जाता है। अक्सर हम 6 to 8 आवर्स की स्लीप के बाद ऑफिस जाते हैं, और हम ऑफिस में स्लीपी महसूस करते हैं, हमें लगता है अभी हमें नींद की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि आपकी स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं है, आपकी क्वालिटी पैटर्न स्लीप क्वालिटी प्रॉपर नहीं है। इसके प्रॉपर नहीं होने की वजह से, हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से ये कंडीशन आपके सामने आती है। इसके अलावा
एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मिसेस स्वाति जैन ने भी अभी आपको बताया कि सेडेंट्री लाइफ जो होती है वो एक बड़ा इशू होता है डायबिटीज में। अक्सर हमारी जो लाइफ होती है, लाइक हम ऑफिस में होते हैं और ऑफिस में घंटों काम करते हैं और हम बैठे रहते हैं। टाइमिंग चेंज हो गई है लोगों की, टाइम ऑफिस की, कि उनको मैक्सिमम टाइम अपने ऑफिस में देना होता है। अगर हम बैंकर्स की बात करते हैं तो अगर गवर्नमेंट बैंक की बात छोड़ दें, गवर्नमेंट बैंक 5 o'clock तक ऑलमोस्ट उनका वर्किंग शेड्यूल रहता है और वो बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में बैंक खुला रहता है। आप जब भी जाएंगे आपको बैंक खुला ही नजर आएगा। इवन संडे को भी आप वर्किंग चलती रहती है। तो जब आप इतना लंबा टाइम एक जगह पे स्पेंड करते हैं, बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका स्ट्रेस लेते रहते हैं, आपके पास जो टारगेट्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे होते हैं, आपको उसका स्ट्रेस होता है। और ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये सारी चीजों आपको अलग कर देती हैं एक्सरसाइज से। आप एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं। एक्सरसाइज करना बंद करने से क्या होता है कि आप खाते तो हैं, कैलोरीज आप लेते जरूर है, लेकिन कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं। बर्न नहीं होती हैं तो फैट बढ़ता जाता है और बेली फैट आपको नजर आने लगता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाया और कैलोरीज ज्यादा ली तो वो पहले बेली फैट पे आएगा। आप बेली फैट पे आएगा वो जरूर, फिर आपकी थाइस का फैट बढ़ेगा, फिर आपके हिप पे फैट जाएगा, फिर आपके बैक पे फैट जाएगा, फिर आपकी नेक पे जाएगा और फाइनली फैट आपके फेस पे आ जाएगा। और जब आप कोशिश करेंगे, जब आप सोचेंगे कि आपका बेली फैट कम हो जाए या आपका वेट लूज हो जाए, तो पहले आपके फेस से जाएगा, फिर आपकी नेक से जाएगा, फिर आपकी बैक से जाएगा, फिर हिप से जाएगा, फिर थाई से जाएगा और फाइनली वो आपके टमी से जाएगा। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये समझा इसलिए रहा हूँ कि आप अगर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं तो जल्दी से ऐसा ना करें कि यार ये तो कुछ हो ही रहा है ना। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो शुगर का लेवल आपकी बॉडी में डे बाय डे बढ़ता रहता है, जो कि फैट को बढ़ा देता है। दूसरा, मसल्स डिसयूज अट्रॉफी। मसल्स डिसयूज अट्रॉफी क्या होता है? आपकी वर्किंग शेड्यूल ऐसा है कि आपने कई बार मतलब अपनी कई मसल्स को एक्टिव करना ही आप भूल गए। लाइक आपकी डेल्टॉइड मसल, जिसे आप आर्म्स कहते हैं, आपके हिप, जिस आपकी थाई, इन मसल्स का आप यूज आपका कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी का एक फंक्शन होता है कि भाई जिस चीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है बॉडी उसको खाना शुरू कर देती है। तो जब बॉडी फैट के अलावा बॉडी मसल्स को खाना शुरू करती है तो उसे हम मसल्स डिसयूज अट्रॉफी कहते हैं। ये कंडीशन अगर आती है तो ये हमें इंडिकेट करती है कि भाई डॉक्टर के पास चले जाओ, अपने ऊपर इतना जुल्म मत करो और अपना ट्रीटमेंट या स्टार्ट कर दो, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर दो, वरना आप डायबिटिक हो सकते हैं। तो जो फैक्टर्स पे हमने बात करी शुरू से लेके, स्ट्रेस फैक्टर पे हमने बात करी डाइट फैक्टर पे बात करी, इसके अलावा हमने जो बात करी वो आपके फूड हैबिट पे बात की, और हमने बात करी आपकी स्लीप हैबिट पे बात करी, फिर हम आपकी सेडेंट्री लाइफ पे आए। इसका ये मतलब है कि आप डे बाय डे डायबिटीज के करीब जा रहे हैं। आपने स्ट्रेस ले लिया, स्ट्रेस में आपने खाना ज्यादा खाना शुरू कर दिया, ऐसा खाना शुरू कर दिया जो प्रोसेस्ड फूड था, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हुई, आपकी लाइफ सेडेंट्री है, आपका ऑफिस टारगेट या ऑफिस वर्क ऐसा है कि जिसने आपकी लाइफ को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि जो आपको डायबिटीज की तरफ लेके जा रहा है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है और वो है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज क्या होती है? इसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज भी कहते हैं। और ये कब डायग्नोस होती है और कैसे डायग्नोस होती है?
देखें इसका भी रिलेशन आपकी लाइफ स्टाइल से है। आज पहले हमने देखा था कि पहले 30 years बैक, 40 years बैक, या अगर हम 20 साल पहले की भी बात करें तो शादी 20 to 30 के बीच में हो जाती थी और ज्यादातर लोग कोशिश करते थे कि 20 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद हम अपनी बेटी की शादी कर दें। तो उस टाइम गेस्टेशनल डायबिटीज के केसेस बहुत कम थे, लेकिन अब जब हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत सारे कोर्स करते हैं जो कि बहुत लंबा टाइम लेते हैं, और हम सोचते हैं कि पहले हम ये कोर्स कंप्लीट कर लें, फिर हमारी जॉब लग जाए, फिर हम सेटल हो जाएं, उसके बाद हम शादी करेंगे। तो हम शादी की एज को क्रॉस कर देते हैं, वो 30 पार हो जाती है, कभी कभी 25 to 30 हो जाती है, और 25 to 30 होने के बाद फिर हम सोचते हैं कि अभी हम फैमिली प्लान करेंगे, विल टेक सम टाइम, हमें अंडरस्टैंड करना है एक दूसरे को, हम अपनी रिप्रोडक्टिव एज को और कम करते जाते हैं। फिर जब प्रेगनेंसी होती है या कंसीव हम करते हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि अगर लेटर एज में आपकी शादी हो रही है, बाद में आपकी शादी हो रही है, आपकी रिप्रोडक्टिव एज कम हो रही है और आपने 30 क्रॉस कर दिया है, तो ये एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आपको हो सकती है, सॉरी डायबिटीज आपको हो सकती है। इसके अलावा जैसे कि अभी हम ऊपर से बात करते हुए आ रहे हैं, ओवरवेट, ओवरवेट भी एक वजह होती है जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। जैसे हम अगर बॉडी मास इंडेक्स देखें और बॉडी मास इंडेक्स हमारा 30 या उससे ज्यादा है, तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं डायबिटीज होने के। देखिए सिर्फ डायबिटीज होने की नहीं, आपकी लाइफ भी इजी नहीं रहती है, डेली आपका चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप अपने कामों में फिट नहीं आते हैं, आपको एक ऑकवर्ड फीलिंग आती है लोगों के बीच में जाने पे जब आपका वेट पुट हो जाता है ज्यादा। तो ओवरवेट एक बड़ी वजह होती है डायबिटीज की, जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज हम कह रहे हैं। अगर जो फीमेल जिसने कंसीव किया है उसको डिजीज है जिससे हार्मोनल डिसबैलेंस, लाइक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसे हम कहते हैं, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्या करती है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को इरेगुलर कर देती है, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से डायबिटीज होना लाजिम है, वो हो सकती है। इसके अलावा कोई ऐसी मेडिसिन ली जा रही है जो कि बीटा ब्लॉकर है, लाइक अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उसे, और वो बहुत लंबे टाइम से बीटा ब्लॉकर ले रहा है, तो उसकी वजह से, या फिर उसकी साइकेट्रिक की कोई मेडिसिन चल रही है, या फिर वो ग्लूकोज इंटॉलरेंस है उसके अंदर, वो ग्लूकोज इंटॉलरेंस हम आगे बात करेंगे। तो ग्लूकोज इंटॉलरेंस होने की वजह से भी अब बॉडी अगर ग्लूकोज को टॉलरेट ही नहीं कर रहा है और इंसुलिन को इजाजत ही नहीं दे रहा है कि वो ग्लूकोज से जाके कोई बात करे और वो सेल में वो ग्लूकोज जाए, तो उसे ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाएगा, और ये कंडीशन आगे बढ़ी तो ये आपको डायबिटीज तक लेके चली जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स डायबिटीज को के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब देखिए हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, और वो बात में जो सबसे बड़ी बात है वो ओबेसिटी है। तो ओबेसिटी एक बड़ा फैक्टर है जो आपको डायबिटीज तक आसानी से ले जाता है। इट इज लाइक अ गुड व्हीकल जो आपको अपने पीछे बिठाता है, कहता है कि भाई मैं तुमको डेफिनेट डायबिटीज तक ले जाऊंगा, डोंट वरी, कहीं भी नहीं छोड़ूंगा तुमको। तो स्टडी बताती हैं कि जो फैट टिश्यू होते हैं जिसे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, वो इंसुलिन को रेजिस्टेंस कर दे, इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देते हैं बॉडी में। अगर ज्यादा फैट है हमारी बॉडी में, तो ज्यादा फैट होने की वजह से भी हम इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं, और जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जो कि इंसुलिन अगर रेजिस्ट हो गए हम, तो इसका मतलब ये है कि हम डायबिटीज की फैमिली में प्रवेश कर चुके हैं, इंटर हो चुके हैं, और अब हमें
समझ जाना चाहिए कि this is the time when you should come back, and if you are not thinking to come back, you will suffer whole life. तो ये सारे फैक्टर, स्ट्रेस, ओबेसिटी, gestational diabetes, sleep pattern, डाइट, ये सारे फैक्टर आपको वहां आते हैं जहां आप कभी जाना नहीं चाहते। तो अगर आप वहां नहीं जाना चाहते तो ये जो साइन, ये सिम्टम्स जो है, ये आपको आने से पहले या इनिशियल स्टेज में जब ये सिम्टम्स हैं आपको, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी हो जाता है। जैसे आप पहले तो भाई इतना भूख नहीं लगती थी, लेकिन अब तो ये बहुत ज्यादा हो गई है, एक्सेसिव हंगर। पहले तो मैं इतना पानी नहीं पीता था, मैं आई एम नॉट थर्स्टी, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी है। पहले मैं इतनी जल्दी नहीं थकता था, लेकिन अब मैं थकने लगा हूँ। अब ये इनिशियल सिम्टम आपके बॉडी में आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आई विल टेक टाइम और मैं ठीक हो जाऊंगा। इसके अलावा आपका वेट गेन हो रहा है। देखिए, वेट गेन या वेट लॉस दो प्रोसीजर होती हैं। ये आपको थायराइड डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकती है। हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होता है, हाइपरथायराइडिज्म में वेट लॉस होता है। तो वो भी एक हार्मोनल डिसबैलेंस है। जब भी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो हम करीब पहुंच जाते हैं डायबिटीज के। आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन क्यों हो रहा है मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर आना शुरू हो जाती है और उस शुगर को यूटिलाइज नहीं किया जाता है इंसुलिन के द्वारा, तो वो शुगर आपके लीवर की तरफ जाती है। लीवर उसको बर्दाश्त नहीं करता है, वो शुगर को फैट में चेंज कर देता है, और कुछ शुगर को वो किडनी को दे देता है। और किडनी विदाउट वाटर उस शुगर को बाहर नहीं निकाल सकती है, तो उसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ज्यादा पानी पीने से ज्यादा यूरिनेशन होता है। तो अभी आप समझ जाइए, या आप बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है तो ये कॉज हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा, कभी कभी विंटर सीजन में जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो हमारे फॉलिकल्स जो होते हैं, पोर होते हैं हमारी बॉडी के, वो बंद हो जाते हैं, तो स्वेटिंग नहीं होती। स्वेटिंग नहीं होने की वजह से बॉडी में वाटर ज्यादा इकट्ठा होता है और यूरिन ज्यादा पास होती है। तो विंटर में, अगर सिर्फ विंटर में ये प्रॉब्लम है आपको, तो हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार हमें कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से कि ये प्रॉब्लम मुझे पहले नहीं थी, अब हो रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना है। अगर इस कंडीशन को हम और आगे बढ़ाते हैं तो हमारा विजन ब्लर्ड हो जाता है, हमें धुंधला नजर आने लग जाता है। कई बार हमने देखा कि हमें कोई भी इंजरी हुई है, उस इंजरी को ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। हमने देखा छोटा सा स्क्रैच आ गया या हमें छोटा सा वुंड आ गया, और वो वुंड लोगों में 5 दिन में, 6 दिन में ठीक हो जाता है। इसको 2 हफ्ते लग गए, 3 हफ्ते लग गए, अभी भी ये ठीक नहीं हो रहा है। वी आर टेकिंग मेडिसिन बट इट इज नॉट गेटिंग हील। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई है कि वो उस वुंड को हील नहीं कर पा रहे हैं। और ये कंडीशन कब आती है? जब हम डायबिटिक होते हैं। अक्सर हमारी बॉडी में नमनेस आ जाती है, जिसे हम सुनपन कहते हैं, या इस लेमैन लैंग्वेज में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा पैर सो गया है, हमारा हाथ सो गया है। हम अक्सर बात करते हैं कि यार ये तो नहीं थी प्रॉब्लम मुझे पहले, लेकिन अब मुझे बहुत जल्दी जल्दी ये होने लगा है कि मैं बैठा हूँ तो मेरे फीट्स जो हैं वो नम हो गए हैं, सुन हो गए हैं। हमारे हाथ जो है, हैंड्स जो हैं, वो सुन हो गए हैं। तो ये सारे अलार्म सिम्टम हैं, ये जो बताते हैं कि अभी भी संभल जाइए और अपनी लाइफ को चेंज करिए। अगर आप लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हैं तो आपको प्रॉब्लम होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आपने इन सबको अवॉइड कर दिया, इतनी हमने बातें की, आपने इन सारी बातों को अवॉइड कर दिया। आपने कहा नहीं भाई, स्ट्रेस तो सबको होता है लाइफ में, मुझे हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। अरे ठीक है ना, कभी खा लिया तो कौन सी बुरी बात है। अरे स्लीप कुछ दिन के लिए बिगड़ गई तो क्या बुरा है। ये सारी बातें अगर आपने अवॉइड की और ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म तक आपने बेयर की, तो उसका खामियाजा, उसके कॉम्प्लिकेशंस आपको भुगतने पड़ते हैं। क्या होता है? आपका विजन ब्लर्ड हो जाता है। जो भी इंजरी है वो हील नहीं होती, और अक्सर देखा गया है, जिसे हम डायबिटिक फुट कहते हैं,
कि आपके पैर में चोट लगी, न्यूरोपैथी की वजह से आपको पेन महसूस नहीं हुआ और वो वुंड बढ़ता गया, और क्योंकि आप डायबिटिक हैं तो उस वुंड ने ठीक होने में काफी टाइम लगाया और वो उसकी वजह से पैर गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन होने की वजह से पैर के उस हिस्से को काटना भी पड़ सकता है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपसे। व्हेन आई वाज इन इमरजेंसी सर्विसेज, वन ऑफ माय पेशेंट केम देयर। वो ड्रेसिंग के लिए आता था और हमें उससे एग्जामिन करना होता था कि इसका वुंड कैसा है। तो ही वाज 60 55 और 60 इयर्स ओल्ड। तो वो जब पेशेंट आया तो उसको उसको देखा गया कि उसके पैर की जो 5 उंगलियां थी उसमें से अंगूठा नहीं है। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि आपका ये अंगूठा नहीं है, जब लास्ट टाइम आप आए थे तो मुझे ऐसा याद है कि शायद ये था। तो पेशेंट ने बोला कि नहीं नहीं, जब मैं घर से निकला था जब भी था। आई मीन यू कैन इमेजिन कि उसको पता नहीं चला, उसके पैर का अंगूठा गिर गया। कैन इट बी पॉसिबल? यस। अगर आपको गैंग्रीन हो गया है, आपका वुंड हील ही नहीं हुआ है, वहां तक ब्लड सप्लाई ही नहीं पहुंची है, वहां तक कोई न्यूट्रिशन पहुंचा ही नहीं है, तो बॉडी की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉडी उसको निकाल के अलग कर देता है। और अगर बॉडी निकाल के अलग नहीं करता है तो डॉक्टर बोलता है कि भाई अब इसमें मूवमेंट भी नहीं है और इसके सेल डेड भी हो गए हैं, तो अब हमें ये पार्ट जो है एम्पुटेट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो ये एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, इसके अलावा हार्ट डिजीज अक्सर देखा गया है कि जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं और वो अगर हाइपरटेंसिव जैसे बीमारी, ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है या हार्ट का इशू है, तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसको अटैक आ गया है, जिसे हम साइलेंट अटैक कहते हैं। उसको बस कुछ दिन तक ऐसा लगता है कि वो थोड़ा गुमसुम रहता है, खाना प्रॉपर नहीं खा रहा होता है, अनईजी फील करता है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। और वो अगर डॉक्टर के पास जाता है, उसकी शुगर बढ़ी हुई होती है, डॉक्टर फाइनली बताता है कि भाई आपको मायोकार्डियल इंफार्क्ट हुआ है, आपका हार्ट डैमेज हुआ है। और ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा किडनी के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि अगर शुगर ज्यादा बॉडी में बनना शुरू हो जाएगी तो वो किडनी को अफेक्ट करेगी, और अगर किडनी अफेक्ट होंगी तो फिर रीनल फेलियर होने के भी चांसेस बने रहते हैं। हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि बेसिकली जब हमारे पास पेशेंट आता है एडम्स होम्योपैथी वर्चुअल क्लिनिक या फिर हमारी लाइव क्लिनिक में पेशेंट आता है, तो हम ब्लड शुगर जो अमूमन चेक करवाया जाता है कि फास्टिंग ब्लड शुगर या पीपी ब्लड शुगर या फिर HbA1c, उसके अलावा हम जो पेशेंट को एडवाइस करते हैं उसमें से एक टेस्ट होता है स्लाइवा कॉर्टिसोल। अभी देखिए मैंने आपको पहले बताया कि कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस के टाइम रिलीज होता है बॉडी से और वो हेल्प करता है हमारा स्ट्रेस को मैनेज करने पे। लेकिन बहुत लंबे टाइम तक अगर कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो वो डायबिटीज तक पहुंच जाता है। तो स्लाइवा कॉर्टिसोल से हम ये पता करते हैं कि कॉर्टिसोल का लेवल कितना ज्यादा है। अगर कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा है और हम बॉर्डर लाइन पे है, तो हम अपनी डायबिटीज को ना सिर्फ पीछे ला सकते हैं बल्कि क्योर भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि आईजीटी के लिए किया जाता है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि टॉलरेंस इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस क्या होता है, कैसे सेल जो है वो टॉलरेट नहीं करता है इंसुलिन को, वो बोलता है कि नहीं भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, और ग्लूकोज इतना बन जाता है कि वो सेल के अंदर जाता ही नहीं है, तो ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है। अगर ये टेस्ट हम करा लेते हैं और इन टेस्ट से हमें उसका रेंज पता चल जाता है, तो हम अपनी डायबिटीज की कंडीशन को, या हम ये कहें कि हम इसे रिवर्सिबल कर सकते हैं और कुछ हद तक हम इसे क्योर की तरफ ले जा सकते हैं। अब what we do, what Adams diabetes, how Adams manage diabetes, हमारा एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज जो है मल्टी फैक्टोरल डिजीज या फिर डिसऑर्डर है, तो प्रोग्राम में मल्टी फैक्टर को हम कवर करते हैं। देखिए आपने जितनी मेहनत करी है डायबिटीज होने में, लाइक आपने जो जो अपने ऊपर जुल्म किए हैं, आपको वो वापस ठीक करना पड़ेंगे। जितने भी फैक्टर्स हैं, आपकी डाइट,
आपका स्लीप, आपका स्ट्रेस, जो गेस्टेशनल डायबिटीज थी वो, जो फूड हैबिट थी वो, उस पे आपको काम करना जरूरी है, जिस पे एडम्स जो है वो उस पे काम करते हैं। हमारी एक टीम है, वो टीम उसमें न्यूट्रिशन और डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, मेडिसिन एक्सपर्ट है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं उसमें, और वो सब पे उस पे काम करते हैं। और हम हर पेशेंट के लिए एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान तैयार करते हैं। उस डाइट प्लान में आपके बॉडी मास इंडेक्स को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी कैलोरीज लेना चाहिए, आपको खाने में क्या लेना चाहिए, किस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं एक मोटा मोटा बता दूं कि देखें, जब आप डायबिटिक हैं तो दो चीज का बहुत ख्याल रखना होता है आपको। एक हाई ग्लाइसेमिक डाइट इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको फ्रूट्स नजर आ जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के होते हैं। अ, वो फ्रूट्स जिसको खाने से फौरन आपकी डायबिटीज बढ़ जाती है। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? जिसको खाने से ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ता है लेकिन बहुत स्लो बढ़ता है। लाइक आपने ग्रीन वेजिटेबल लिया तो ग्रीन वेजिटेबल लेने से भी ग्लूकोज बनेगा, कार्बोहाइड्रेट लिया उससे भी ग्लूकोज बनेगा, जो भी आप खाना खाएंगे ग्लूकोज बनेगा। लेकिन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, जो डाइट होती है, वो धीरे धीरे आपके बॉडी में शुगर के लेवल को बढ़ाती है, जिससे पैनक्रियास को टाइम मिल जाता है इंसुलिन सिक्रीट करने में, और इंसुलिन को टाइम मिल जाता है ग्लूकोज के साथ बाइंड करने में, और उस ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने में। एक इंसुलिन एक ग्लूकोज को लेके जा सकता है, एक इंसुलिन 100 ग्लूकोज को लेके नहीं जा सकता। तो मल्टीफैक्टरल डिजीज है, तो उस पर हमें काम भी वैसे ही करना होता है। हमारी टीम है जो आपको ऑनलाइन सपोर्ट देती है, और उस टीम में हम पहले आपकी लाइफ स्टाइल, डाइट स्टाइल को नोट करते हैं, आपकी स्ट्रेस को नोट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक परफेक्ट डाइट प्लान बना के देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मेडिसिन स्टार्ट होती है। अब जो टॉपिक है हमारा हमारा टॉपिक है, इज डायबिटीज क्यूरेबल इन होम्योपैथी और नॉट। तो अब हम होम्योपैथी पे आए हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा, होम्योपैथी में कोई भी अगर डिजीज होती है, वो डिजीज को क्योर करने का एक ही फॉर्मूला होता है। वर्ल्ड वाइड अगर अच्छा होम्योपैथ है तो वो उसी फॉर्मूले से आपकी डिजीज को क्योर करने की कोशिश करेगा, और वो कोशिश होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या मियाज्मेटिक अप्रोच। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या होता है? हम पेशेंट का इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं, हर पेशेंट को एक मेडिसिन नहीं देते हैं। उसकी कंडीशन, उसकी स्ट्रेस, उसके लाइक डिसलाइक, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से हम उसको मेडिसिन देते हैं जो कि उसको क्योर की तरफ लेके आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना 100% जरूरी है। बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। यही एक स्किल होता है होम्योपैथ डॉक्टर के पास कि इट इज अ साइंस एंड आर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन ढूंढना एक आर्ट है, और उस आर्ट के लिए आपको डॉक्टर से मिलना, उसको टाइम देना जरूरी होता है। लेकिन अभी मैं आपको ऐसी 4 मेडिसिन बताने वाला हूं जो मेजरली यूज होती हैं होम्योपैथी में डायबिटीज के लिए। इसमें सबसे ऊपर आती है साइजेरियम जम्बोलिकम। साइजेरियम जो मेडिसिन है वो मेजरली यूज होती है होम्योपैथी में, और जब हमें दिखता है कि और ये इमीडिएट इफेक्ट देती है आपकी शुगर को कम करने में, ये बहुत फास्ट रोल प्ले करती है। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन है जिसे हम हेलोनियस मेडिसिन कहते हैं। ये ज्यादातर उन पेशेंट को दी जाती है जिनकी मेमोरी बहुत वीक हो गई है, जो एज में ज्यादा एजेड लोग होते हैं, जो एक्सट्रीमली मेलनकोलिक होते हैं, जो डिप्रेस्ड पीपल होते हैं, बहुत उदास फील करते हैं, बहुत लो फील करते हैं, बैठे रहते हैं, किसी से बात ही नहीं करते हैं।
तो ये उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर ऐसे पेशेंट को डायबिटीज है तो उनके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसके अलावा आयोडम एक मेडिसिन है जो कि डायबिटीज के लिए दी जाती है, और इसका इंडिकेशन क्या है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा हंगर होता है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, उसकी एपेटाइट जो है वो कभी भी ठीक नहीं रहती। वो खाना तो खाता है लेकिन उसकी बॉडी को लगता नहीं है। पेशेंट कहता है मैं खाना तो बहुत खाता हूँ लेकिन मेरी मसल्स इंप्रूव नहीं होती है, मैं मस्कुलर नहीं होता हूँ, मैं मोटा ही नहीं होता हूँ, मेरा वेट वहीं पे अटका हुआ है। तो अगर ऐसे पेशेंट को डायबिटीज है तो फिर उसके लिए आयोडम इज अ गुड मेडिसिन। आयोडम मेडिसिन दूसरे कंडीशन में भी दी जाती है, लेकिन इस कंडीशन के लिए आयोडम अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा सिफ्लेंड्रा इंडिका एक मेडिसिन है जो कि डायबिटीज में दी जाती है, और ये इंडिकेट कब होती है, जब पेशेंट को हीट जो है वो टॉलरेट ही नहीं होती है। इनटॉलरेबल बर्निंग, हर चीज में, पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट हो रही है और बहुत प्रोफ्यूज यूरिनेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा यूरिन पास हो रहा है। तो उस कंडीशन के लिए सिफ्लेंड्रा इंडिका इज अ बेस्ट मेडिसिन। तो ये 4 मेडिसिन है, लेकिन आप ये मत सोचें कि इन मेडिसिन को लेके आप क्योर हो जाएंगे। ये स्पेसिफिक मेडिसिन है। क्योर अगर आपको होना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेना जरूरी है, अलोंग विद द डाइट एंड द एक्सरसाइज एंड ऑल। अब मैं आपको मिलाना चाहता हूं अपनी टीम से, जो इस पे वर्ल्ड वाइड मेहनत करती है, इंडिया में और यूनाइटेड किंगडम, लंदन में भी हमारे डॉक्टर्स हैं जो कि यूएस और यूके के पेशेंट को डील करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ अली, डॉक्टर आयशा अली इज शी इज अ सीनियर होम्योपैथी कंसल्टेंट, डॉक्टर मजहर कुरैशी ही इज अ सीनियर कंसल्टेंट, डॉक्टर हुदा इफ्तिकार। हम इंडिया में टीम को मैनेज करते हैं, हमारी टीम पेशेंट को मैनेज करती है और उनके प्लान को लोगों तक पहुंचाती है, और हम कोशिश करते हैं कि डायबिटीज रिवर्सिबल ऑर्डर में आ सके। अगर हमारे पेशेंट जो कि इंडिया में नहीं है, जो यूएस या यूके में है, तो डॉक्टर महानाज खान, शी इज एक्सपर्ट इन डाइट एंड न्यूट्रिशन, और ये हमारे उन पेशेंट के साथ डील करती हैं जो पेशेंट इंडिया के बाहर हैं। तो ये हमारी हैप्पी टीम है जो बहुत मेहनत करती है पेशेंट को क्योर की तरफ ले जाने के लिए। तो आई एम थैंकफुल टू देम। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन सपोर्ट लेना चाहते हैं हमसे, तो हमारी वेबसाइट है www.adamhomeopathy.com। इस पे आप जाके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। जब आप अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं तो हमारे पास नोटिफिकेशन आता है मेल के थ्रू, हम फोन के थ्रू आपको कांटेक्ट करते हैं, आपको फैमिली हिस्ट्री फॉर्म भेजा जाता है, फैमिली हिस्ट्री फॉर्म आप फिल करते हैं, फैमिली हिस्ट्री फॉर्म आप हमें वापस करते हैं। उसके बाद हम आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ऐड होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम आपसे उस फॉर्म में जो भी फिल किया गया है उसको डिटेल में बात करते हैं, और आपके डाइट प्लान को, आपके लाइफ स्टाइल को डिस्कस करते हुए आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। और या फिर अगर आप इंडिया में हैं या इंडिया के बाहर भी, हम मेडिसिन उनको उनके होम पे डिलीवर भी करते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट भी मुझसे मेरे ईमेल एड्रेस पे doc.adam-homeopathy@hotmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है ईस्टर्न हेल्थ हब, ये वीडियोस आप वहां भी देख सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9993073458, उस पे भी आप मैसेज के थ्रू मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय ऑडियंस, कि जिन्होंने मुझे इतना पेशेंट से सुना, और मैंने कोशिश की कि मैं आप तक हर वो बात पहुंचा सकूं जो आपको डायबिटीज से बचा सकती है, आप समझ सकें कि डायबिटीज कैसे होती है। मैं आई एम थैंकफुल टू मिसेस स्वाति जैन ऑल्सो, coordinator of Women's Forum of SPSR. I'm thankful to Mr. Dr. Shashi Alok, President of SPSR.
I'm also thankful to Honorable Secretary Mrs. Swati, Mrs. Sabarwal, Mrs. Monica Sabarwal. इसके बाद मैं ये जिम्मेदारी आगे मिसेस स्वाति जैन को देना चाहूंगा, और अगर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप नीचे पुट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का मैं कोशिश करूंगा कि माकूल जवाब दे सकूं। तो मिसेस स्वाति जैन, प्लीज। Swati, I think Mrs. Swati, you are on mute. आपको अपना म्यूट जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। We are not able to listen you. Okay. Thank you. Thank you so much, Dr. Asif, to have imparted us with in-depth knowledge about how diabetes can be cured by homeopathy without side effects. Your informative webinar might have indeed helped so many virtual viewers whose near and dear must be battling with this disease without knowing any escape of allopathic medicines, which causes so many side effects. SPSR is really grateful to have such an excellent session yet again today. Dr. Asif, we have received a lot of queries about this session today. So I would request Dr. Shashi Alok, President SPSR, to kindly pass on the queries of our virtual enthusiastic viewers. Thank Dr. you, Swati. Shashi? Yes. Thank you, Swati. Thank you, Dr. Asif, for a wonderful session. You have explained very using the pictogram and simply looked it. There are some questions. Just like we have organized webinar, is diabetes curable in homeopathy? So my first question is, why homeopathic in diabetes? Okay, that's very good question basically. और मुझे खुशी होगी इसको एक्सप्लेन करने पे। अक्सर हम डायबिटीज की तरफ जब जाते हैं जब हम हार चुके होते हैं हर चीज में, तो होम्योपैथी की तरफ, सॉरी, होम्योपैथी की तरफ इसलिए हमें आना चाहिए डायबिटीज में क्योंकि होम्योपैथी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हम जो केस टेकिंग करते हैं वो केस टेकिंग हमें इंडिविजुअलाइजेशन पे लेके जाता है। इंडिविजुअलाइजेशन से हम उस कॉज तक पहुंचते हैं जो कॉज है, एक्चुअल कॉज है डायबिटीज के लिए। तो अगर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं, हम मियाज्मेटिक अप्रोच के साथ मेडिसिन देते हैं, हम इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं पेशेंट का, तो होम्योपैथी साइड इफेक्ट किए बिना आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं डायबिटीज की वजह से, जैसे न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, या फिर हमारे फुट, डायबिटिक फुट, या फिर और भी जो दूसरे भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसे हम होम्योपैथी के थ्रू क्योर कर सकते हैं। तो सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये आपकी बॉडी को जो है इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। और ना सिर्फ डायबिटीज, दूसरे भी फैक्टर्स जो कि आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं, वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से क्योर हो सकते हैं। तो इसलिए हमें डायबिटीज में होम्योपैथी की तरफ जाना चाहिए। Okay, thank you, Dr. Asif. Dr. Asif, as we know that homeopathic pills are sweet, so can we take in diabetes? That is very common and simple question. एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। अक्सर लोग बाग हमारे पास आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे तो डायबिटीज है, तो हाउ कैन आई टेक योर मेडिसिन? इट इज अ स्वीट पिल्स लाइक अ साबूदाना शेप। सो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो स्वीट पिल्स होता है, ये लैक्टोज से बनता है, और लैक्टोज कभी भी हार्मफुल नहीं होता बॉडी के लिए। तो लैक्टोज से बनी हुई मेडिसिन अगर हम ले रहे हैं तो it will not harm, it will not produce complication in your body. इसके अलावा अगर हम ग्लोबुल्स फॉर्म में नहीं भी ले रहे हैं मेडिसिन, तो हमारे पास कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हम लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं अगर आपको मेंटली सेटिस्फैक्शन नहीं है। लाइक इफ पेशेंट आर थिंकिंग कि नहीं, डॉक्टर साहब ने तो अपनी मेडिसिन देने के लिए ऐसा बोल दिया है, बट वी शुड अवॉइड स्वीट थिंग्स, तो वो उसे लिक्विड फॉर्म में भी ले सकता है। लेकिन
साइंटिफिकली ये प्रूफ हुआ है कि होम्योपैथी की जो पिल्स होती हैं जो कि लैक्टोज से बनती हैं, उसको लेने से आपका शुगर का लेवल इंक्रीज नहीं होता है, बल्कि आपका जो पैनक्रेटिक सेल है इन मेडिसिन को लेने से वो हेल्दी बनते हैं। तो मीठे होने की वजह से आप उसे नहीं ले रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वो मीठा नहीं है जिसको आपसे हार्म है। होप इज इट्स अ satisfactory Yes, yes. Thank you, Dr. Asif. viewers. One more question. Should a diabetic patient stop allopathic medicine when starting on homeopathic medicine? ये मेरा भी क्वेश्चन है। अगर मैं होम्योपैथिक लेना चाहूँ, वैसे मुझे डायबिटीज नहीं है मुझे, लेकिन अगर कोई पेशेंट को अगर डायबिटीज है, वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है, आप होम्योपैथिक उसको सजेस्ट करते हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए देखिए पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम डॉक्टर आसिफ। कोई भी मेडिसिन हम बहुत लंबे टाइम से ले रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी उस मॉलिक्यूल से है, उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है और स्टॉप कर देते हैं या बंद कर देते हैं उसे। हम ये सोचते हैं कि हाउ कैन वी नो दैट सो वी शुड स्टॉप द हमको होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो आपको एलोपैथी सडनली बंद नहीं करना है। जब आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो ट्रीटमेंट आपका 6 मंथ 1 आपका जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल है, करते हैं कि अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलके या फिर हमारी सलाह पे मेडिसिन को टैप करें। उसके अगर इफ यू आर टेकिंग इट, you can take it once a day, or you can take, if you are taking, so you should reduce the potency also. नहीं बोलते हैं पेशेंट को कि आपको इमीडिएट बंद कर दें, करेंगे आपको, हम किसी की मेडिसिन आपको नहीं लेने देंगे, तो ले रहे हैं तो उसको इमीडिएट बंद मत करिए। आपकी शुगर का लेवल लंबे टाइम तक, तो हम उसको टैप करेंगे और फिर हो सकता है कि हम तक पहुंच जाएं कि हम उसे बंद कर सकें। ओके डॉक्टर आसिफ, एक और क्वेश्चन है। जैसे अभी कोविड चल रहा है, जैसे किसी को डायबिटीज है और कोविड-19 कोविड भी अगर हो जाता है, तो कितना इफेक्ट करेगा ये क्या शुगर लेवल का? कुछ बताएंगे इसके बारे एग्जैक्टली देखें, आपको अपनी लाइफ को सही है कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो, क्योंकि जो कोरोना वायरस है पेशेंट पीरियड 14 डेज है, लेकिन बॉडी में अगर कोई भी डिजीज आ जाती है और आप डिजीज एक लंबा टाइम लेती है क्योर होने के लिए, तो अगर आपको और आप डायबिटिक भी हैं, तो इससे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से डैमेज ज्यादा होता है, लंग्स डैमेज होते हैं, आपका पैनक्रियाज और लीवर तो पहले ही सफर कर रहा था, लेकिन अभी क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम हो गई है और वायरस आप पे हावी हो गया है, तो अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल नहीं है, डेंजर, यू आर ऑन डेंजर, आई मीन इट इज नॉट गुड फॉर यू। तो डायबिटिक पेशेंट को कोरोना हो गया तो वो क्योर नहीं हो सकता है, डेफिनेटली क्योर हो सकता है। उसको जरूरी है कि उस टाइम वो अपने डाइट को कंट्रोल रखे, अपनी एक्सरसाइज को करता रहे, और जैसा कि WHO की गाइडेंस है कि अपने आप को दूसरों से अलग रखे और अपने हाथ और पैरों की सफाई कंटिन्यू करता रहे, क्योंकि और दूसरा इम्यूनिटी भी कमजोर है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वो ज्यादा डैमेज करती है, चाहे वो लंग्स की इंजरी हो चाहे वो हाथ पैरों की इंजरी हो। तो जरूरी है कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहे। होप इट्स अ satisfactory आंसर।
So Dr. Shashi Alok is not visible. I just want to tell you one thing, one more thing I just want to add with a webinar, that के अक्सर मैं आपने को बता दूं कि कोरोना के टाइम ऐसा हुआ कि लोगों की जॉब चली गई। कोरोना के टाइम ऐसा हुआ कि वो उनको उनकी हैबिट नहीं थी घर में रहने की, उनकी हैबिट जिम की थी, वो सारी चीजें बंद हो गई। तो उसकी वजह से डायबिटीज के पेशेंट बढ़ गए हैं। जैसे वो उसका जॉब चला गया, अभी पेशेंट स्ट्रेस में है और अपने घर पे है। तो अब तो पतिदेव घर पे हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, तो इनको अच्छा हम बना के खिलाते हैं और अच्छा खिलाया भी जा रहा है। और पेशेंट जो है एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, और पेशेंट को ये स्ट्रेस भी है कि अभी इन 3 मंथ तक तो हमें जॉब मिलने वाला भी नहीं है। तो स्ट्रेस भी है, डाइट पे भी कंट्रोल नहीं है, जिम भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सारी चीजों ने हमारे अंदर डायबिटीज को, और हमारा फैमिली हिस्ट्री भी है, तो इन सारी चीजों ने हमारे अंदर प्रॉब्लम को ज्यादा बढ़ा दिया है। डॉक्टर शशि आलोक बैक इज हियर, सो इट्स अप टू यू डॉक्टर शशि आलोक। Okay, thank you, Dr. Asif. Now over to Swati Jain. If any queries, please ask. Please, Dr. Swati Jain. Thank you, sir. Yes, we do have some questions from our virtual viewers. Some more questions. Somebody has asked Dr. Asif that in this pandemic period, we just ate, slept, and did no exercise almost for 6 months, and had led a very luxurious life. So, what is the incubation period of diabetes? बेसिकली देखिए, ये पैंडेमिक में हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। पैंडेमिक ने हमें बता दिया है कि सही लाइफ कैसे गुजारी जाती है। तो इस इंक्यूबेशन पीरियड में जो 14 डेज का है कोरोना का, मैंने आपको इससे पहले बताया कि यू शुड नॉट स्टॉप योर हेल्दी हैबिट्स। आप जिम नहीं जा पा रहे हैं, आप घर में एक्सरसाइज करिए, अपनी वाइफ से बोलिए, या आप खुद भी खाना बनाते हैं तो बोलिए, भाई हमको इतना तला वाला खाना नहीं चाहिए, हमको इतना प्रोसेस्ड फूड नहीं चाहिए, हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं खाना है जो हमारे शुगर लेवल को शूट करे। तो ये जो पैंडेमिक है, ये जो टाइम है, ये जो 6 मंथ गुजरा है, इसमें हमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखने की जरूरत रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोई ऐसी वैक्सीन इंट्रोड्यूस नहीं हो सके। तो इस पीरियड में हमें बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, सारी चीजों को फॉलो करने की जरूरत है। Hope this is you right answer for you. Well, Dr. Asif, I guess the query was like कि अगर किसी को ऐसी luxurious lifestyle मिल रही है, लोग इस तरीके से बहुत ज्यादा खा पी रहे हैं, तो ऐसे में डायबिटीज अगर किसी को होती है तो कितने दिन में हो सकती है? I think the question was some way like this. Yes, I got it. Basically मेरा ये कहना है कि ये 6 महीने काफी हैं उसके लिए। धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ेगा, तो इट इज नॉट लाइक कि आपको 10 दिन में डायबिटीज हो जाएगी या 15 दिन में डायबिटीज हो जाएगी। इट्स टेक टाइम, it's depend on your stress, it's depend on your luxurious life which you explained। तो इन सब पे ही डिपेंड करता है, और आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो एक सर्टेन टाइम नहीं है कि 14 डेज में होगा या फिर 1 महीने में हो जाएगा। इट्स हो सकता है कि ये 2 महीने भी ले। डॉक्टर स्वाति। हाँ जी सर। Yes. थैंक यू सर। सर, अनदर क्वेश्चन था कि ये जो होम्योपैथिक थेरेपी होती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, ये कितनी लंबी होती है लगभग? फाइन। ये बेसिकली थेरेपी जो है होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट हम जो प्रोग्राम लेके आए हैं डायबिटीज पेशेंट के लिए, और काफी लंबे टाइम से हम इस पे काम कर रहे हैं, और काफी रिजल्ट्स हैं हमारे। काफी पेशेंट्स की मेडिसिन काफी कम हो गई है, और कई पेशेंट रिवर्सिबल स्टेज में आ गए हैं, और कुछ पेशेंट क्योर भी हैं। तो
ये थोड़ा सा टाइम लेती है। ये टाइम इसलिए लेती है कि जो टाइम आपने लिया है डायबिटीज करने में, उतना टाइम तो हमें लगता है डायबिटीज ठीक करने में। मिनिमम यू हैव टू टेक 1 ईयर ट्रीटमेंट, और इट्स डिपेंड कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपकी एज क्या है। एज फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसको ठीक करने में। तो एटलीस्ट यू हैव टू टेक 1 ईयर और मोर देन इट। आई मीन इट कैन बी फॉर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है उसको भी टैप करते हैं। हम देखते हैं कि पेशेंट विदाउट मेडिसिन जो है वो अपनी शुगर को कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा, अगर आपका शुगर लेवल एक है, आपकी मेडिसिन हमें पता है कि हमने उसको टैप कर दिया है, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि नाउ यू कैन एंजॉय योर लाइफ लाइक प्रीवियस। like there's no need of exercise, there is no need of proper food. You have to follow all the things, all the instructions, वो आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये आपको एक बार हुई है तो दूसरी बार भी हो सकती है। तो मिनिमम यू हैव टू टेक 1 ईयर ट्रीटमेंट। जी, थैंक यू सो मच सर। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि एक व्यूअर ने पूछा है कि क्या कोई मेडिसिन है प्री डायबिटिक पेशेंट के लिए? देखिए, प्री डायबिटिक पेशेंट हमारे लिए एक वरदान की तरह होते हैं, जिन्हें हम बहुत जल्दी खुश कर सकते हैं। खुश करने का मतलब ये होता है कि वो उनकी शुगर लेवल भी नीचे आ जाता है और वो क्योर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मैंने अभी भी बताया कि होम्योपैथी में स्पेसिफिक मेडिसिन जरूर है आपकी शुगर को नॉर्मल करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर जो कि प्री डायबिटिक है वो क्योर की तरफ चली जाए, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेना होगी, जिसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। 25 कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है होम्योपैथी में। 25 में से कोई भी एक मेडिसिन आपकी लाइफ, डाइट स्टाइल, आपकी फैमिली हिस्ट्री और पास्ट हिस्ट्री पे जो सूट करती है, उसको लेके आप अपनी कंडीशन को क्योर कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकती है, वो नेट्राम्यूर हो सकती है, वो फॉस्फोरिक एसिड हो सकती है, वो और दूसरी भी मेडिसिन हो सकती है। जो भी लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन की, वो कोई भी मेडिसिन हो सकती है। बट देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर क्यूरिंग डायबिटीज, लाइक कि आपने लिया और ये ठीक हो गया। Thank you so much, sir. Thanks a lot to have spared your invaluable time for providing us with such awareness. I believe that the suggestions and inputs given by you will turn out to be very helpful for all of us. SPSR would always look forward to have more such expertise sessions with you. Thank you to all our viewers to have stayed over so patiently over here and to have enthusiastically participated in the session today. We are really fortunate and pleased to have had your eminent presence today. In the end, I would like to say that since it's pandemic stress all over the world and people are really juggling with its deadly effects, we would be really happy, Dr. Asif, if you would like to give any grain of advice to our viewers. ये जो हमारा वेबिनार हुआ, इस वेबिनार में मैंने वो हर चीज बताई है जो आपके लिए जरूरी है। तो डिसिप्लिन में आ जाइए, ये आपके लिए जरूरी है। बाहर जाएंगे तो पुलिस मारेगी, और अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो अंदर आपकी बॉडी आपको परेशान करेगी। एक्सरसाइज, प्रॉपर फूड, अवॉइड